Navishra, today we'll be studying verbs, right? You were Yes, ma'am. saying that the topic for today's class would be verb. So what do you understand by verb? आपको क्या पता है verb के बारे में? Ma'am, verbs are action words. Action words, whatever action has been done in the sentence, right? So a verb is a word which indicates an action in present, past or future tense as performed by a subject. Okay. तो क्या होता है वर्ब का डेफिनेशन आपको पता है. सो इसके बाद जैसे मैं सेंटेंस लिखती हूँ, रुचि लाइक्स आइसक्रीम. तो इसमें क्या हो रहा है, व्हाट डज रुचि लाइक? रुचि लाइक्स आइसक्रीम. So we say that ice cream is the object of the sentence, right? ये object है, ये subject and this is verb, right? जो भी वो action हो रहा है, ठीक है, action is likes. तो ये क्या है sentence में? Verb, right? Right, Navishra? Yes, ma'am. So next sentence is Monu wastes money. So in this sentence, what is the verb? Can you tell me what is the object of a verb? Money is the object, right? Yes, ma'am. Yes. And waste is, what is waste? Verb. Object of, yes, object of the verb. Money is the object of the verb, sorry, and waste is the verb and mono is the subject. So third sentence is so here in third sentence, mangoes is the object, I is I the subject, and love is the verb. verb, right? So what are the types of verb? You've been talking about. Do you know the types of verb? No, ma'am. Okay, the types of verb are transitive, intransitive, and third is incomplete. So transitive verbs. तो transitive verbs हम किसको कहते हैं? A verb that requires an object to complete its tense. Means कि जब एक sentence में we require the help of an object to complete its sense. Without the object, the sentence is senseless. There is no meaning of the sentence. So we require an object to complete its sense. For example, Tanya eats an apple. तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? Yes, Navista, what is the object in this sentence? Sanya eats an apple. Apple?
An apple, yes, is the object. और अगर अगर ये हम ऑब्जेक्ट इसमें मेंशन नहीं करेंगे, अगर हम सिर्फ लिखे सानिया ईट्स, so this is incomplete, right? Sania eats. What does Sania eats? तो इसलिए ऑब्जेक्ट हमें नेसेसरी होता है इसमें, इसका सेंटेंस का सेंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब जैसे एक और सेंटेंस है, he speaks English. तो English is object, speaks is verb, and this is subject. तो अगर हम करें he speaks, so what does Ma'am, he? verb is always in middle. Just with the subject, mostly with the subject. ये एक्शन जो सेंटेंस में जो भी एक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है ना, जो भी एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, ठीक है, वो होता है वर्ब। अब इसमें क्या हो रहा है, एक्शन क्या है इसमें, बोलना, स्पीक्स, इसमें ईट्स, ये खाना हमारा एक्शन है, तो जो भी एक्शन हो रहा होगा वो वर्ब होगा। तो इसमें क्या है कि इफ वी रिमूव इंग्लिश, तो ही स्पीक्स, व्हाट डज ही स्पीक्स, वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, एक सेंस वाला सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, समझ आया ट्रांजिटिव? Yes, ma'am. ओके, अब सेकंड है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव क्या होता है, अ वर्ब that does not require an object to make sense or to complete its sense. इस नविष्ठा, इसका डेफिनेशन को पढ़ो और समझो कि इसमें क्या बोल रहे हैं। A verb that does not require an object to make a sense but good sense by itself. बट मेक Ma'am, गुड it सेंस। means when that this verb doesn't require any type of object to make sense because it can यस, make sense जैसे by हमें हमें इसमें रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज अदरवाइज ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है और हमें इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाएं। अब जैसे इसके एग्जाम्पल देखो, मैरी लाव, बस यही है ये सेंटेंस, मैरी लाव। तो लाव के बाद हमें नीड नहीं है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को लगाएं, राइट? उसके बाद है सेंटेंस जैसे मोहन वॉक्ड। ठीक है, तो देख रहे हो तुम, ये सेंटेंस अपने आप में ही कंप्लीट है, ये एक सेंस बना रहा है, मोहन वॉक्ड, ठीक है, मैरी लाव, ठीक है। अब थर्ड है हमारा इनकम्प्लीट वर्ब। अब इनकम्प्लीट वर्ब ये समझ आया, इंट्रांजिटिव? yes, ma'am. ओके, तो चलो इनकम्प्लीट वर्ब्स क्या होते हैं? Incomplete verbs These verbs
do not make these verbs do not make complete sense by themselves. They need some words to complete the sense. अब इसमें क्या कह रहे हैं, ये वो verbs होते हैं that do not make complete sense by themselves, कि वो sentences जो sense नहीं बना पाते खुद से. They need some words to complete the sense. ठीक है, उनको हम incomplete verbs बोलते हैं. अब जैसे सेंटेंस है John is, so this is not complete, right? John is, तो हमको कुछ वर्ब चाहिए होगा उसके साथ कि हम उसको कंप्लीट करें. तो जैसे हम बोल देंगे जॉन इज सैड, राइट? तो अब ये सेंटेंस कंप्लीट है, राइट? यस मैम. अब सेकंड है जैसे एमी सीम्स. व्हाट डज एमी सीम्स? ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है. तो अगर हम कोई और वर्ड इसके साथ लगाएं, कुछ वर्ब लगाएं, वो वर्ड जो उसको फुलफिल कर दे, कंप्लीट कर दे सेंटेंस को, तो एमी सीम्स हैप्पी. Sad. Sad, happy, anything can be there. हाँ, और सैड. जॉन को सैड कर दिया ना, इसलिए एमी को हैप्पी कर दो. हाँ समझता? मैम मैं कह रही थी जॉन को वी हैड मेड हिम सैड ना, तो इसको इसलिए एमी को हैप्पी कर दिया. हंसना था इस पर. सो तुम अभी उठे हो नविष्टा 5 बजे? नो मैम. फिर Out. यू वर आउट. सो Yeah. when did you came back? Just now, ma'am. Okay, so you are feeling tired? No, ma'am, not really. Okay. Okay, so in incomplete verbs, the verbs in these sentences do not express an action or do not show possession. We call them incomplete verbs. So एक word हम add करते हैं, the word added to them to complete the meaning. Okay, कि उसका मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हम उसमें वर्ड ऐड करते हैं. ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं एक और है कि ऑक्सिलरी. ये तो थ्री टाइप का एक और टाइप है, थर्ड फोर्थ होगा, ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब. तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? द वर्ब which help the main verb to change its form or which does the
वर्क ऑफ मेन वर्ब, और हम ऑक्सिलरी वर्ब को एक और वर्ड होता है इसके लिए, एक और वर्ड से पहचानते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये दोनों का मीनिंग सेम होता है, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। द वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू चेंज इट्स फॉर्म और विच डज द वर्क ऑफ मेन वर्ब। तो जैसे मैं सेंटेंस लिखती हूँ, द गार्डनर इज watering the plant। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, the word is are helping the verb water, is helping the verb water to change its form, right? अब इसके अंदर क्या है, अब देख रहे हो, is हेल्प कर रहा है वाटर को इसका इसकी फॉर्म को चेंज करने के लिए। ठीक है, अब जैसे एक और सेंटेंस है, इसमें बताओ, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? Helping what the boy has broken the glass. तो व्हाट इज द The हेल्पिंग वर्ब? the व्हाट? the अब जैसे broken इसमें हेल्पिंग वर्ब इज था, इसमें क्या है हेल्पिंग वर्ब? हाँ नविष्ठा, अगर हम यहाँ पे इसको यूज ना करें, अगर हम ये बोल दें द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट, तो ये मिसिंग है, कुछ कुछ करेक्ट नहीं लग रहा सेंटेंस। तो हमने हेल्प लिया इज का, तो इज है हमारा हेल्पिंग वर्ब, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट। तो The इस boy has broken the glass, so it will be has, right? यस, हैज इज द हेल्पिंग वर्ब। तो और ब्रोकन क्या है इसमें? मेन वर्ब, राइट? मेन वर्ब ब्रोकन थर्ड फॉर्म में देखी। ठीक है, समझ आया आपकी ये ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? ठीक है, Yes, ma'am. तो अभी हम इसके बाद बात करते हैं वर्ब फॉर्म्स की। तो वी हैव 5 वर्ब फॉर्म्स या 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जैसे फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस फॉर्म, सेकंड है पास्ट टेंस फॉर्म, थर्ड इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, then fourth is ing form, then fifth is present tense, third person,
सिंगुलर फॉर्म। अब जैसे वर्ड है जो प्रेजेंट टेंस में, फॉर एग्जांपल हम वर्ड से समझते हैं, जैसे वर्ड है ईट, तो ईट का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? एट। Is past form is it, ma'am? एट, ईट, It. एट, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होएगा? या फिर थर्ड फॉर्म वर्ब की मतलब फ्यूचर फॉर्म ईटन। Eaten. ठीक है, अब देखो अगर वर्ड है गो प्रेजेंट टेंस में, तो गो का क्या हो जाता है? वेंट पास्ट में, और फ्यूचर में क्या हो जाता है? गॉन। गॉट इट? गो, वेंट, गॉन, ये तीनों फॉर्म्स वर्ब की। उसके बाद जैसे वर्ड है कम, कम का क्या हो जाता है? केम पास्ट टेंस, और फिर से फ्यूचर टेंस क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कि आईएनजी फॉर्म। तो ईट का क्या होएगा? ईट में आईएनजी ऐड हो जाएगा, ईटिंग। और हमारा सेकंड वर्ड क्या था? ये गो, और थर्ड कम, तो गो में ऐड होएगा आईएनजी, गोइंग। कम में ऐड होएगा आईएनजी, तो कमिंग। समझे? Yes, ma'am. अब ये वाला जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, इसमें क्या होता है? एस ऐड हो जाता है। तो जैसे ईट है हमारा फर्स्ट वर्ड, तो ईट का क्या आएगा? ईट्स। गो का, अब GOS तो कुछ नहीं होता, गोज, GOES। कम का क्या हो जाएगा? कम्स। ठीक है नविशा, अब तुम्हें फॉर्म्स, वर्ब की फॉर्म्स का लिस्ट तुम्हें याद है कि जो जो वर्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में क्या होते हैं, पास्ट टेंस में क्या होते हैं, Yes, ma'am. पास्ट पार्टिसिपल में क्या होते हैं? I don't know past participle, ma'am. Till now, we only know present, past, and future. हाँ, तो पास्ट And पार्टिसिपल मतलब फ्यूचर। ठीक है, okay, तो अब ma'am. मैं प्रेजेंट में वर्ब वर्ड्स लिखूंगी, तो आपको उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल या फिर फ्यूचर टेंस, और एक तुम्हें पता है आईएनजी वाला, तो आईएनजी ऐड करना। वो तो तुम्हें पता है, कोई भी प्रेजेंट टेंस का वर्ड होगा तो उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको मैं लिख नहीं रही हूँ। तो जैसे प्रेजेंट में वर्ड है अराइज, तो इसका क्या हो जाएगा? अराइज का सेकंड फॉर्म, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? अराइज का क्या होगा? अरोज, और फ्यूचर अराइजन। ठीक है Okay, नविष्ठा, ma'am. अब मुझे बताओ बिकम का क्या होगा? बिकम, Became. बिकेम, और थर्ड फॉर्म Mm, फिर से बिकम। become will only come, ma'am. अब देखो हमने कम पढ़ा था अभी, कम का क्या हुआ था? केम, और फिर से कम हो गया। ठीक है, पढ़ा Okay. था अभी। Yes, ma'am. अब बताओ थर्ड, ब्रेक। ब्रेक का क्या Break. होगा? हाँ, ब्रेक का Break. Broke. ब्रोक, वेरी गुड। And again break. ब्रोकन, Broken is future, right? हाँ, तो फ्यूचर ही तो लिख रहे हैं हम। ये Future. प्रेजेंट है ब्रेक, पास्ट है ब्रोक, और फ्यूचर है ब्रोकन, राइट?
समझ आया? Yes, ma'am. समझ आया कि नहीं? ये थर्ड फॉर्म ही तो है वर्ब की। फ्यूचर, फ्यूचर में हम ब्रोकन ही तो लिखेंगे उसको। अब बाय का बताओ, बाय का क्या होगा? Bye. Bought. बॉट, वेरी गुड। और इसका Fine. फ्यूचर फिर से बॉट। Bought. How will come, ma'am? बाय, B1. बॉट, बॉट। ये तुम्हें याद करना होगा, ये ऐसे ही है वर्ड्स जो डिफाइंड है, वो ऐसे ही हैं। इसमें हाउ वाला वर्क नहीं चलेगा कि ऐसे क्यों हुआ। ठीक है, ये याद कर लूंगी कि कौन सा वर्ब का फॉर्म में कौन सा वर्ड आएगा। अब कट का बताओ, बहुत इजी है कट का। कट, हाँ नविष्ठा, Yes, ma'am. कट का क्या होगा? Cut. Ma'am, I don't know. कट कट कट, मैं बोल रही थी कि बहुत इजी है। चलो अब हम वर्ब्स की, ये एक्चुअली वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, तुम्हारी बुक में भी होंगे। इन योर बुक No, यू ma'am. हैव? No, ma'am. नहीं? चलो ठीक है, हम एक्सरसाइज करते हैं अब। ठीक है, तो ये ये वर्ब्स इसलिए वो होते हैं इम्पोर्टेंट कि हमें वर्ब्स की तीनों फॉर्म पता होने चाहिए, कि वो फर्स्ट फॉर्म के में अगर सेंटेंस है तो पास्ट वाले फॉर्म में क्या आएगा वो वर्ड, और फ्यूचर वाले में क्या आएगा, क्या चेंज होगा उसमें। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। Okay, ma'am. अब यू हैव टू fill in the blanks using correct helping verbs given in bracket। ठीक है, ब्रैकेट में हेल्पिंग वर्ब्स दिए हुए हैं, तुम्हें वो फिल करने हैं। सोनिया डैश ईटिंग फूड एम और इज। Sonia is. इज राइट। दे डैश रनिंग, सॉरी, इज या फिर आर? They are. आर। नेक्स्ट, चलो मैं लिख नहीं रही, मैं पूछ ही लेती हूँ। नेक्स्ट है Okay, ma'am. वी डैश प्लेइंग, इज और आर? Are. he dash not take it, will या shall? he dash not take it, Shall. he will। we shall, we जब होगा तो shall आएगा। he will not take it। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि उसमें हमें चूज करना है कि सेकंड फॉर्म बतानी है वर्ड की। ठीक है, अब जैसे वर्ड है अराइज, अभी हमने पढ़ा था अराइज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? पास्ट Rose. फॉर्म अरोज। Arrange, ma'am. वेरी गुड। अब बताना थर्ड फॉर्म बताओ अराइव की। अराइव की थर्ड फॉर्म? Arisen. अराइव्ड। Arrived. ठीक है, Okay, ma'am. ये एक सेकंड रुको।
exercise. Hmm. अभी आई एम राइटिंग फ्यू वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैं लिख रही हूँ. एक तो आपको सेंटेंस में विल या शैल यूज करना है, प्लस जो भी वर्ड्स में लिखूंगी उसमें कौन सा वर्ड आएगा. तो वर्ड्स हैं वी गेट, मीट, टेक, बाय, गो, लुक. ठीक है. अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, ये कन्वर्सेशन है. अब जैसे अनिल इज सेइंग आई हेयर यू, I hear you have won a lottery. What will you do with the prize? तो सुनील उसका रिप्लाई देता है I dash a new car. I dash a new car. तो आपको will और shall यूज करना है, और इन वर्ड्स में से क्या आएगा. I dash a new car. हाँ नमिष्ठा, Ma'am? आपने मेरा क्वेश्चन नहीं सुना है. Ma'am, I listen, but I'm not able to understand. मैं आपको जो क्वेश्चन बोल रही हूँ, फर्स्ट मैंने बोला, उसके अंदर फर्स्टली मैंने बोला अनिल ने क्या कहा, देन सुनील ने क्या कहा. तो अनिल ने बोला आई हेयर यू हैव वन अ लॉटरी, व्हाट विल यू डू विद द प्राइज. तो सुनील इसका रिप्लाई देता है आई डैश अ न्यू कार. तो अ न्यू कार, so you have to fill in the dash. I will या shall में से आप क्या यूज करोगे, और इन वर्ड्स में से आप क्या वर्ड फिल करोगे इसमें. Ma'am, I'm still not able to understand how I'm going to place that. Not with the नविष्ठा, explanation, I'm just not able to place that in the correct place. I के साथ आप will या shall में से क्या लगाओगे. I will. will, और आप a new car, I will dash a new car. So be, get, meet, take, buy, go, look. आप इसके अंदर से क्या वर्ड चूज करोगे इस सेंटेंस के लिए. विल तो आपने लगा दिया, ठीक है. विल या शैल में से एक चीज हमें यूज करनी थी, प्लस वी हैव टू चूज अ वर्ड फ्रॉम दिस सेंटेंस. तो इसके अंदर से आई विल बाय अ न्यू कार, राइट. एक नई कार खरीदेंगे, बाय करेंगे उसको. तो बाय इसमें यूज होगा, आई विल बाय अ न्यू कार. समझे नविष्ठा, समझे कि नहीं, और नहीं समझे तो क्या नहीं समझ आया. हाँ नविष्ठा बताओ क्या समझ नहीं आया. Understood now. नहीं बताओ क्या नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें समझ नहीं आया. I will buy a new car or I shall buy a new car. हाँ तो बताओ, आई विल आएगा कि शैल आएगा. अब यहाँ पे ये विल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा शैल. और वो क्यों आएगा, क्योंकि उसने बाय अभी किया नहीं है, ठीक है. उसने अभी खरीदा नहीं है, ही इज थिंकिंग टू बाय. तो यहाँ पे शैल.
I shall buy a new car. ठीक है, अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखो. नेक्स्ट सेंटेंस इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन रिया एंड पूजा. तो रिया कहती है, वाई डोंट यू ट्राई ऑन योर न्यू ड्रेस. तो पूजा रिप्लाई करती है, आई डोंट थिंक इट डैश गुड ऑन मी. आई डोंट थिंक इट डैश गुड ऑन मी. तो सबसे पहले बताओ कि विल आएगा कि शैल आएगा, और उसके बाद जो ये वर्ड्स हैं, बाय तो हमारा फिनिश हो गया, बाय तो हमने उस सेंटेंस में लगा लिया. तो इसमें से और क्या वर्ड आएगा इस सेंटेंस में? आई डोंट थिंक इट दैट्स गुड ऑन मी. नमस्ते, तुम्हें सेंटेंस समझ आ रहा है? Yes, I'm just thinking. देन व्हाट आर यू I थिंकिंग? what will come? I don't think it will विल. आगे क्या वर्ड यूज करोगे ये सब वर्ड्स में से? fit. हाँ, Uh, ये जो वर्ड्स लिखे हैं look, इसमें, look. look. I don't think it will look good on me, right? Okay, correct. It will look, right? अभी नेक्स्ट सेंटेंस में इधर लिख रही हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस है, see you, I hope we dash again soon. See you, I hope we dash again soon. तो इसमें हमारा लुक भी जा चुका है. अब ये देखो सबसे पहले कि इसमें फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वो फ्यूचर के लिए कह रहे हैं आई होप वी डैश अगेन सून. तो क्या आएगा? विल या शैल में से क्या आएगा और इन वर्ड्स में से क्या आएगा? हमारे पास अब बचे हैं बी, गेट, मीट, टेक, गो. ये वर्ड में से क्या आएगा? पहले बताओ विल या शैल में से क्या आएगा नविष्ठा? Will इसमें फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उसमें शैल आएगा. uh, See you, I hope we shall. आगे ये वर्ड में से क्या आएगा? meet. I hope we shall meet. Meet. We shall meet again soon, right? अब हमारे पास meet भी चला गया. We have be, get, take, go. We get, take, go. रुको. We get, take, go और will या shall. अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, I will take you to airport today. No thanks.
अंजलि डैश मी। तो यहाँ पे क्या फिल करोगे आप? Mm, I will take you to airport today. No thanks. Anjali will take. विल टेक, राइट। अंजलि विल टेक मी। तब हमारा टेक भी चला गया। तो नेक्स्ट है हमारा इट्स रेनिंग डोंट गो आउट यू डैश वेट। मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिखती हूँ, इतने सोचो इसमें क्या आएगा। Mm, it is raining. Don't go out. You will get wet. यस, यू विल गेट वेट। अब इसके बाद क्या है नेक्स्ट? अवनी हैज इनवाइटेड मी टू हर सिस्टर्स मैरिज बट आई डोंट थिंक आई दैट देयर। यस नमस्कार। Avni has invited me to her sister's marriage, but I don't think I will go there. आई विल गो देयर, राइट। अभी मैं नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है कि मैं तुम्हें कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ यहाँ पे। यू हैव टू राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंसेस। अब जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, यहाँ से पैरा स्टार्ट है, पैरा में है। नविष्टा ये जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ तुम साथ साथ पढ़ते जाओ और सोचो कि उसमें क्या फॉर्म आएगी वर्ब की और Okay, कैसे लिखा जाएगा। द होल क्लास डैश the whole class dashed by the geography teacher. Sanjit is only the child who dashed his project. The whole class
is punished by the geography teacher. Sanchit is the only child who. अब अपने पास अपनी नोटबुक में वर्ड्स लिख लो कि क्या आएगा वहां पर, ठीक है? फिर जब अभी Okay, अभी मैं कंप्लीट कर लूंगी फिर हम डिस्कस करेंगे। इतने okay, तुम ma'am. लिखते जाओ। Was punished. Was punished. Who was praised? Was praised. The others fail. Sanjit is determined. He would. Was determined. तो इस समय पेज टर्न कर रही हूँ एक बार, 2 फिलअप और रह गए हैं फिर हम Okay, ma'am. करते हैं। यस, तो पढ़ो और बताओ। Yes, ma'am, I completed. हाँ The बताओ। whole class was punished by the geography teachers. Sanchit हम्म is the only child who was praised for his project. The others हम्म failed to do their work. Sanchit हम्म is a Sanchit is happy. He हैप्पी। worked all हम्म night to complete his project. He हम्म was determined to complete his work. The teacher appoint. Ma'am, can प्रेज्ड, you द टीचर प्रेज्ड। ma'am, can you turn the next page? प्रेज्ड आएगा यहाँ पे द टीचर के बाद। द Was टीचर praised, प्रेज्ड हिम एंड gave him 3 golden stars. He appointed him the monitor of the class. क्लास, राइट? तो Yes, यहाँ पे आपने करेक्ट फॉर्म्स का यूज किया है, सूटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, और उससे ये पैरा को कंप्लीट कर दिया है, राइट? तो अभी ये बताओ, वर्ब का तो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि कल में व्हाट वील डू इन इंग्लिश, क्योंकि टुडे इज 21st, तो तुम्हारे 28 को एग्जाम है ना? yes, ma'am. 28 से, राइट? तो नमस्कार, तो तुम इसमें एग्जाम्स में तो क्लासेस नहीं लोगे ना? No, ma'am. ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, बिकॉज आज 21 हो गई है और वी हैव 22, 23, 24, 25, ठीक है? हमारे पास 20, वी हैव 4 days बिफोर योर एग्जाम। तो उन Okay. 4 days में आपको क्या 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 टॉपिक कंप्लीट करना है? आप कल क्या करना है आपको इंग्लिश में? बिकॉज हमारे पास 22, 23, 24 और 25 है।
अब जो टॉपिक तुमने मुझे बताए थे वो थे कॉम्पोजिशन, कॉम्प्रीहेंशन, लेटर राइटिंग, फिगर ऑफ स्पीच, मैसेज राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ठीक है, और पंक्चुएशन और जनरल ग्रामर। जनरल, अब बताओ कि तुम्हें इसमें से कल क्या करना है। फिर से बोलूं क्या मैं टॉपिक? No, ma'am. I have to say the topic. नहीं, टॉपिक जैसे मुझे पता है, अब मैं कह रही हूँ कि हमारे पास 4 days हैं, तो आपको उसमें से क्या, उसमें क्या क्या कंप्लीट करना है, ताकि हम अभी से वो 4 days अरेंज कर लें, ताकि हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं कि आपको क्या क्या करना है, जो आपको डिफिकल्ट लगता है, जो आपको नहीं पता है। Okay, ma'am. ओके, बताओ अब मेरे को कल क्या करना है ग्रामर में। Ma'am, in grammar tomorrow can we do composition, because composition is the biggest chapter for us there. कॉम्पोजिशन यही है ना कि आपको कोई भी टॉपिक दे दिया होता है, यू हैव टू राइट, यू हैव टू कंपोज फॉर एग्जांपल इन 100 और 150 और 200 वर्ड्स उस टॉपिक के रिगार्डिंग, Yes, ma'am. है ना? ठीक है, कल And हम like I कॉम्पोजिशन, said, ma'am, to practice math in the last 2 days. ये वाले लास्ट 2 days में मैथ, Yes, ma'am. ठीक है, इसमें मुझे चलो इसका तो बाद में बताना कि क्या 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 तुम्हें मतलब क्या करना है मैथ्स में प्रैक्टिस में। ठीक है, अब ये बताओ, कल तो कॉम्पोजिशन करना है, और 23rd को कॉम्पोजिशन और कुछ और टॉपिक भी बता दो, क्योंकि कॉम्पोजिशन हम एक दो मैं पैसेज निकाल लूंगी, या फिर एक दो मैं टॉपिक निकाल लूंगी, एक आध तुम्हें समझा दूंगी और एक आध टॉपिक तुम लिख लोगे। इसके बाद मुझे बताओ कि और क्या, बिकॉज हम सोच 1 hour वी हैव, तो कॉम्पोजिशन के अलावा और कुछ बताओ, और क्या करना है। कॉम्प्रिहेंशन यू कैन डू, राइट? Yes, ma'am. हाँ, और बताओ मेरे को, तुम्हें सोचने में बहुत टाइम लग रहा है। In composition, after that, we have comprehension also, ma'am. कॉम्प्रिहेंशन, Comprehension. चलो कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे, मैं पैसेज ढूंढ के रखूंगी तुम्हारे लिए, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद 23rd में बताओ कि क्या करेंगे, और ग्रामर के टॉपिक बताओ जो तुम्हें टफ लगता है, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। बिकॉज हमने लेटर राइटिंग, Noun. हाँ, Noun. नाउन, Mm. ठीक है, और लास्ट के 2 days हमें मैथ्स करना है, तो कल हम कॉम्पोजिशन और कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, ठीक है। ओके नमस्ता, Okay, ma'am. ओके, सो सी यू टुमारो, Bye, ma'am. Have a nice day. बाय, यू टू, बाय।